नमस्कार सिस्टर. I request everybody to please settle down. A very good morning to one and all present here. We are extremely delighted to welcome you all to Alankar, the Global Leadership Summit of Avenues. Avenues is the annual business festival of Shailesh J. Mehta School of Management, IIT Bombay. The theme for this year's edition is Embracing Hybrid Reality, keeping up with the current trends of digitalization of various aspects of life in the post-pandemic era. Alankar, the flagship event of Avenues, is a platform wherein distinguished speakers from myriad industries share their valuable experiences, which serves as a source of inspiration for student community across IIT Bombay. Today, we are honored to have Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, as esteemed chief guest for the 18th edition of Avenues. I request Professor Subhashish Chaudhary, Director, IIT Bombay, to welcome Shri Nitin Gadkari ji by presenting a bouquet and a memento. Thank you, sir. I now invite Professor Subhashish Chaudhary to address the audience. Good morning, Honorable Sri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister of Road Transport and Highways of the Government of India, distinguished guests, faculty members, our students, and the delegates for this special program that our School of Management is organizing today. I welcome you all to this special ceremony, and it's also a pleasure to welcome our distinguished chief guest this morning. This particular program is supposed to connect IIT Bombay with the students of other places and those who are interested in exploring entrepreneurial activities in various disciplines. And we are very happy to see that there are a large number of participation that would be doing for the 2 days that we have with them. So I welcome, and I hope you have a fruitful interaction, because this is one area where IIT Bombay puts a lot of emphasis. I could always talk about credentials of IIT Bombay, that sir, today IIT Bombay is recognized as the #1 institute where out of the top 50 rankers in our admission test, we get 48 of them, and 2 of them we give it to other IITs, okay? But today it's not what you're going to talk about IIT, because this is one aspect of teaching, and also IIT Bombay produces the largest number of PhD students. Last convocation, we have produced 459 PhDs. So that's actually a big step for our research. But today our job is to listen to our distinguished chief guest. So I will not sit, in front of you to actually kill his time, but it is my pleasure to introduce our chief guest. The list is very long, so I'll do in a very short way of introduction. I hope I do justice. Mr. Nitin Gadkari is the Minister of Road Transport and Highways of Government of India.
Mr. Gadkari completed his post-graduation in commerce, besides studying law and obtaining a diploma in business management. Mr. Gadkari formally entered politics in 1980. He also served as the PWD minister in Maharashtra government and was leader of the opposition in the state legislative council for 4 consecutive terms. Mr. Gadkari is committed to adopt a transport fuel which is import substitute, cost-effective, indigenous, and best of it is a pollution-free. Under Mr. Gadkari's guidance, the city of Nagpur was the first city to explore alternative biofuels for transportation, including bio-CNG, bioethanol, and LNG. Under his supervision, over 70,000 kilometers of national highways have been constructed in the last 7 years, and 30,000 kilometers of new roads are being constructed currently. 22 world-class access control greenfield expressway projects being led by Mr. Gadkari under Bharatmala Pariyojana Phase 1 are presently in various stages of construction. He is the man behind marvelous engineering showcases like Bandra-Worli Sea Link, 55 flyovers in Mumbai, India's first Mumbai-Pune Expressway, 14-lane Delhi-Meerut Expressway, Nagpur's multi-layer metro rail cum flyover system, and upcoming high-tech Delhi-Mumbai Expressway. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, and 15 intermodal stations are currently being developed under Mr. Gadkari's tenure. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, etc. He is now taking a lead in development of new sustainable mobility and last mile connectivity modes like ropeways, cable car, funicular, rail, etc. across the country. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrappage policy, which proved to be the fight against pollution in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of the major work includes unprecedented push for R&D in electric vehicles for developing alternative battery chemistries such as sodium-ion and aluminum-ion batteries and hydrogen fuel cells. Mr. Gadkari is committed for the development of qualitative, time-bound, cost-effective, and sustainable world-class infrastructures in the country. Friends, I think today a country needs a leader, a visionary person like Mr. Nitin Gadkariji. It is our pleasure to host him today at IIT Bombay, and we look forward to his margdarshan today, but to all of us. Thank you so much. Thank you, sir. It's time to inaugurate the 18th edition of Avenues. I request Shri Nitin Gadkari ji to click the button and digitally inaugurate Avenues. Thank you, sir. I now request our Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari ji, to address the audience. No problem. Professor Subhashish Chowdhury, Director IIT Mumbai, distinguished dignitaries, faculty members, and all my dear students. It is really a great pleasure for me to interact with you. One of the important reason is, particularly the students from IIT and other students, there is a lot of difference. Because you are doing a lot of research, innovation,
And I always telling to the people two important philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And that is exactly related with you. The other important thing is no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate leadership, and vision of the leadership that 100% you can get wealth from the West. West to wealth is really another important philosophy. And your relation with the both philosophy is really, I feel that you are the people who can change the socio-economic scenario of the country because your research, your innovation is going to create great wealth for the country. Not only wealth, but you can make Indian economy number one economy in the world. That type of technology and research is already you are doing. And IIT Mumbai is the leading organization as compared with the other IITs. So I'm really happy to interact with you. First of all, regarding the management, I remember because when I was entering here, I remember I construct 55 flyovers in Mumbai. And that one of the flyover was here. And I taken the land from L&T. And that flyover, it was very difficult because the alignment was it coming through the factory of L&T. So I requested the management and giving land to me for that project. So there was a lot of discussion with L&T. Actually, L&T was working with me in Mumbai-Pune Express Highway. So at that time, they gave me the permission. And that's why I see the success story of this flyover here. But one of the things which I feel, that in front of IIT, the construction of metro is going on. And just 1 year before, I appointed a committee under the chairmanship of Ravi Sinha from your IIT. I sent that delegation to Singapore and Malaysia. And actually, on their committee report, we have accepted the policy. And that policy is, it's really a great research. This research is very important for the country because it is going to reduce the cost of the bridges and cost of the metro by 30%. In India, distance between the two piers is maximum up to 30 meters. But in Malaysia, they have successfully experimented the distance between the two piers is up to 120 meters. 120 meters. The reason is they cast the pillar, there is 120 meter distance is there. But the pier, that casting of that, what we call it? Beam with steel fiber. And because of steel fiber, they increase the length. And that is the reason we save the cost. So now we are making this experiment everywhere by reducing the cost by 30%. But actually the research which is supported by IIT and research which is done by Ravi Sinha ji in front of your IIT, the all traditional system they use for constructing metro here. Something I feel that. It can easily save the cost of crores of rupees. This is the importance of technology. I feel that you are the people who have a lot of good research, good study, and the entrepreneurship is equally important. The most important thing, because you are already, the knowledge is important. I'm not an engineer, but we have 6 world records. And frankly speaking, I'm not an intelligent man. So actually, you are all merit student, because in IIT, without merit, you can't get admission. But my feeling is, knowledge is important, but at the same time, your inherent abilities, your management expertise is equally important. I remember the one thing that when I was minister in Mumbai in 95-2000, my budget was 1,200 crore. And total staff with my ministry is come to 36,000 crore.
At that time, we formulate new organization as MSRDC. I was the founder of that organization. Still, the organization is working nicely. And we construct 55 flyovers, Worli-Bandra Sea project, and Mumbai-Pune Express Highway. You just tell me how much number we have at that time as engineers, as officers. In department, we are working, our budget was 1,200 crore, the people working more than 32,000. And in MSRDC, we have completed the works more than 10,000 crore. I'm talking about 95, 2,000. And the total staff was only 49. So this is the difference between the approach of the management. So first of all, the management is very important. We need fast-track decision-making process and positivity in thinking. In the government, majority people are very intelligent, but they are using their all knowledge to convince the minister that how this is not going to happen, how it is difficult. I remember in 97, when I got appointed to meet with Balasaheb Thackeray, he gave me one slogan, and that was written on one acrylic sheet, that I like people who can get the things done. So the most important task is that you need to take fast-track decision-making process, transparency, and corruption-free system. Not taking decision is a big problem. I like people who can get the things done. I like them. Even I like people who can take some wrong decisions, because I always telling to people that you should analyze the thing, whether the mistakes are bona fide or malafide. If the mistakes are malafide, forgive them. If the mistakes are bona fide, forgive them. And the mistakes are malafide, then you can take the action against them. So problem is that no one is perfect and no one can claim that he is perfect. Uttam, Adhik Uttam, Sarvottam up to infinity. You cannot catch your own image. हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो पूर्णांक है, और इसलिए हर समय गलती हो सकती है. If the mistakes are bona fide, forgive them. पर गलती से सुधरना चाहिए. और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैनेजमेंट में हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए. The most important thing in the management is teamwork. And because for the teamwork, you need human relationship. Respect should not be demanded, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. But sometimes, ego, arrogance, these are the problems which are facing on the higher level of the management. And they discriminate the people. The human relationship is the biggest strength of politics, business, and social work. Everywhere, the human relationship is most important. Without your relationship, you cannot make miracles. And for that human relationship, after if you have good human relationship, then there is a good team. I always telling to people one of the important example which is related with you from mathematics. ए व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. But when A and B comes together, thinks together and works together, the answer is A square plus B square plus twice AB. And this twice AB is a result of collective team spirit. सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करिए. अहंकार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मुझे ज़्यादा समझता है, तुमको नहीं समझता है, ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए. जब आप छोटे से छोटे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करोगे, वो आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा. मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो एक सोलापुर के
रेस्ट हाउस में एक खानसामा था। तो बाद में मेरा मंत्री पद चला गया और फिर कभी मैं सोलापुर जाता था, वो डब्बा लेके स्टेशन पे आता था। रात को गाड़ी आती थी सोलापुर से मुंबई, तो जनरली उसी से आता था। तो मैंने उसको एक बार कहा कि भाई तुम क्यों आते हो डब्बा लेके? न मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, न मैं महाराष्ट्र सरकार में भी हूँ अभी, तो तुम क्यों तकलीफ उठाते हो, तुम क्यों लेके आते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर, आप जब मंत्री थे तो आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे साथ आपने अच्छा बिहेवियर किया, मैं कभी ज़िंदगी में उसमें भूल नहीं सकता। और वो रिस्पेक्ट के लिए मैं आपके पास लेके आता हूँ। और उसके आंखों में आंसू आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल मेरी रोटी और सब्जी खा लोगे तो भी मुझे खुशी होगी, इतना आप केवल करिए। तब मैंने उसको कभी नहीं रोका। अभी भी मैं सोलापुर जाता हूँ, अभी वो रिटायर्ड हो गया है, फिर भी मेरे लिए वो कभी ट्रेन से आता हूँ तो अभी हवाई जहाज में गया तो भी आता था। सो आई ऑलवेज टेलिंग टू द पीपल, मैं तो पब्लिक लीडर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा कि जब मुझे मनाही की गई थी यहाँ से मत लड़ो, और अभी मैं चुनाव लड़ा, इस बार 3.5 लाख वोटों से आया हूँ। अगले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। और मैंने अभी तय किया है कि मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, कटआउट नहीं लगाऊंगा, खिलाने पिलाने की बात ही नहीं। अब चुनाव मेरे हिसाब से चलेगा, जिसको देना है वोट दे, नहीं देना वो मत दे। मुझे विश्वास है लोग देंगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब लोगों में काम करेंगे तो कास्ट, कैश, सब बातें, जो रिलीजन, सब तो ऊपर उठ के लोग तुमको सपोर्ट करते हैं। और इसलिए समवेयर योर लीडरशिप अप्रोच, यू आर ऑल्सो द लीडर, बिजनेस लीडर बनने वाले। अभी बड़े बड़े यूएसए में सीईओ बने, आपके यहाँ से गए हुए लड़के बने। तो स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसका संबंध एजुकेशन से नहीं है। एजुकेशन की डिग्री जो होती है वो आदमी को एजुकेटेड बनाती है, सुशिक्षित बनाती है, सुसंस्कृत बनाती नहीं है, सुशिक्षित बनाती है, एजुकेटेड। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। हमारे सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इथिक्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। Education is important and ethics more important than education. Value-based education system is the biggest strength of Indian society. और वैल्यूज़ क्या है ये आपको भी पता है। हमारे टीचर के साथ हम कैसे बिहेवियर करें, माता पिता के साथ कैसे बिहेवियर करें, संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के मार्ग से चलना, छोटी छोटी बातें हैं जो वे ऑफ लाइफ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, मैं मजाक में कहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में तो काफ़ी दोस्त हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो फिल्म एक्टर, और अभी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफ़ी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है? मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन के पार्टी का दिल्ली गया था। तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते हैं लोग। अब होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। तो मैंने उनको बताया था कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उन लोगों के नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। और ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो राजनीति में चुनाव होते ही है। तो हमारे यहाँ नागपुर में ट्राइबल सेक्टर में वो पारधी समाज की एक महिला थी। तो उस समय मुंडे साहब होम मिनिस्टर थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। वो हाथ भट्टी
सब डिस्ट्रॉय की उनकी, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। तो मैं और मुंडे साहब वहाँ गए थे। बाद में वो जो हथबट्टी चलाने वाली महिला थी हमारी पार्टी में आई, तो मैं एक जिला परिषद में छोड़ दिया धंधा वो। तो उसको मैंने मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ो जिला परिषद का, हम आपको टिकट देंगे। और मैंने उनके तुरंत 5,000 रुपये लेके उनको दिए। तब चुनाव था जिला परिषद का कि आप काम की शुरुआत कर दो। और बाद में जब टिकट बांटने की बात आई तो सब लोगों ने मुझे कहा कि ये इसकी कम्युनिटी बहुत माइनॉरिटी में है, ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। और वहाँ तो ट्राइबल में से दूसरे कम्युनिटी जो मेजोरिटी उनको टिकट देना चाहिए, नहीं तो हारेंगे। इसके ऊपर आपकी इच्छा। मेरे लिए कोई नहीं बोल रहा था, पर सब ने मुझे कहा कि ये उचित नहीं होगा। तो मुझे बड़ा धर्म संकट आया कि अब क्या करना। तो मैंने 5,000 रुपये भी दिए थे और प्रॉमिस भी दे दिया था। और वैसे चाहता तो मैं टिकट दे सकता था, मेरे लिए कोई विरोध नहीं कर रहे थे, पर मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो मैंने उस महिला को बुलाया और मैंने उनको कहा कि मुझे माफ़ करिए, आपको टिकट नहीं दे पाते क्योंकि जितना मुश्किल होगा ऐसा सबका कहना है। मैंने तो आपको कह दिया और आपने काम भी शुरुआत कर दिया। अब आपको नहीं बोलना पब्लिकली सब आपने डिक्लेयर करने के बाद मेरे लिए बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। उसने कहा भाऊ क्षमा क्या मांगते हो, उसकी क्या ही है, कोई ज़रूरत नहीं, आप जो भी उम्मीदवार देंगे उसका मैं काम करूँगी। और झट उसने पर्स में से पैसे निकाले, कहा कि 3 दिन मैंने गाड़ी लगाई थी, ये 1800 रुपये खर्चा हुए, बाकी पैसे ये आप वापस लो और जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूँगी। और तुरंत हंसते हुए वो चली गई और उसने उसका काम किया। अब मैं इतना राजनीति में कि जब टिकट नहीं मिलता तो कैसे लोग नाराज़ होते, घर के बाहर निकाल देते, गालियाँ देते, उसका मैंने बहुत अनुभव लिया। तब मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ना एजुकेशन है ना संस्कार है, इसने कितना अच्छा व्यवहार किया। तब मेरे ध्यान में आया कि केवल एजुकेशन से ही प्रगल्भता आती है, अच्छा व्यक्ति बनता है, ये सच नहीं है। विद्वान बनना और अच्छे व्यक्ति बनना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसलिए जो मूल्याधिष्ठित संस्कार है हमारे जीवन पद्धति में, इथिक्स में, वो हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिलते हैं। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति भी, उसकी भी ताकत है। और इसलिए नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है और व्यक्तित्व में अच्छे संस्कार भी आवश्यक है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसा तो कमाना है, पर पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और ये बात हम लोग समझ सकते हैं, विश्व में ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला और भाषण ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीने के लिए गया था। तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों भी थे। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि हमारे यहाँ गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जब ये मैंने बताया तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सोशल सिस्टम में अभी काफ़ी उद्ध्वस्त हो रही है। तो मैंने बोला क्यों? बोले हमारे यहाँ नए लड़के और लड़कियाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके कारण परिवार पद्धति कोलैप्स हो रही है। हमें समझ में नहीं आता कि इसका कैसे हम मार्ग ढूंढें। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपके यहाँ गरीबी है तो ये आपके यहाँ क्यों नहीं है? तब मैंने उनको कहा कि हमारी समाज पद्धति, जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है। गरीब के घर में भी अच्छे संस्कार हैं और अच्छे संस्कारों के कारण, जो मूल्याधिष्ठित संस्कार पद्धति है उसके कारण हमारे यहाँ ये समस्या नहीं के बराबर है। और ये हमारी भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हम एक तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब में आगे जाए, पर दूसरी ओर हमारी व्यक्ति के रूप में जो जीवन पद्धति है, संस्कार पद्धति, उसके तरफ भी ध्यान दें और दोनों का समन्वय रखकर ही हम आगे जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज स्टार्टअप में हमने बहुत प्रगति की। मैं अभी चौधरी साहब को बता रहा था
और उसमें मेजॉरिटी IIT के। मैं ई व्हीकल, मेरा एक संकल्प है, बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन है इसलिए कि मैं तो कहता हूँ कि एक दिन करना ही है, जल्दी करना है। वो है कि पेट्रोल डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैं ई व्हीकल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इस पर बहुत काम करता हूँ। और मेरा ये मान्यता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने। और मैं आज आया हूँ वो आपके सामने भी कुछ प्रॉब्लम रखकर जिसका सॉल्यूशन आप ज़रूर निकालोगे। और वो यही है कि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। और जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इज बिग कंसर्न, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, तीनों हमारे लिए गंभीर प्रश्न है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे देश में हमारी ऊर्जा, हम ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाले हैं, एनर्जी को, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है, वो ये है कि इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और जो हमारा रिसर्च है वो नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है उसके बेस पर रिसर्च होना चाहिए। हमारे रिसर्च में रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग है। एग्रीकल्चर में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग प्रकार के रिसर्च है। मैं 7 साल के पहले, 7-8 साल पहले, मैं नागपुर से हूँ, तो हमने तय किया था कि हमारा जो सीवेज वाटर है उसको रिसाइकलिंग करके हम बेचें। और जब मैंने, हमारा मेयर जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, अनिल सोले करके, तो उनको मैंने कहा कि ये टॉयलेट का पानी साफ करके हम बेचेंगे। तो बोला यार तुम कुछ भी फंडा लाते, खोल लेगा ये। मैंने बोला ये होगा। और आज हम हमारे शहर का 7 साल से सीवेज वाटर बेच रहे, महाराष्ट्र सरकार की पावर को लिए कोराडी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट के लिए पानी दे रहे। आपको आश्चर्य होगा, हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। और अब मेरे मन की इच्छा है, मालूम नहीं होती कि नहीं, पर आप जैसे टैलेंटेड, यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है देश की, और आप उनमें से है, तो मेरा सपना ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, रबर, मेटल्स, ग्लास और ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है। इसको सेग्रीगेट करके काफ़ी रिसाइकलिंग होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकलता है, मीथेन से बायो CNG, बायो LNG निकल सकता है, और उसके बजाय उससे ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार हो सकता है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइज़र में हम लोग वर्ल्ड में सबसे हाई नंबर 1 है। वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइज़र इन द वर्ल्ड। बंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने इनॉग्रेट किया एक फैक्ट्री को। तो मेरा सपना ये है कि जो सीवेज वाटर है जो हम रिसाइकलिंग करके कोराडी खापरखेड़ा को देते हैं, वहाँ और सरप्लस वाटर है। और हर गांव में, मुंबई में भी है, समुद्र में छोड़ देते सब। तो ये जो पानी है इसको 98% प्यूरिफाई करके, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है। तो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप लगेगा बड़ा, उसमें गोडाउन लगेगा जिसमें सेग्रीगेट करने के लिए, उसमें ऊपर सोलर होगा रूफटॉप, और उसमें से पावर सस्ती मिलेगी। और ये पानी जो 98 प्यूरिफाई अच्छा पानी होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइज़र से हम लोग यूज़ करके 1.25 करोड़ का 1 करोड़ का आ जाएगा, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। अब मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, तो अभी किर्लोस्कर ने 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर मुझे दिया है। तो अब वो डीजल की ज़रूरत नहीं, तो वो जनरेटर से 500 बार तक उसको कंप्रेस किया जा सकता है, और फिर उसको ट्रक, बस, कार में भर के हम लोग उसको चला सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से पावर की कॉस्ट ₹2.40 यूनिट आएगी,
तो पर केजी कॉस्ट काफ़ी कम आएगी। अब ये कॉस्ट हमारे देश में $1 पर केजी 1 केजी हाइड्रोजन की कॉस्ट होगी तो बहुत अच्छा है, जो आपको रिसर्च करना है। और ये अगर देश में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा, एक तो बायो वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से और वेस्ट वाटर से, तो हमारी नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब शुद्ध हो जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो जाएगा। उल्टा वैल्यू एडिशन होगा, वेस्ट टू वेल्थ। और ये मैं चौधरी जी साहब को कहूँगा कि इसमें आप जरूर रिसर्च करिए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से हमारी समस्या है। आज हमारे देश में हमारे टोटल पावर बास्केट में 38% सोलर पावर है, और अब हमको बढ़ा रहे सोलर पावर, पर हमारी थर्मल पावर तैयार किए बिना कोई उपाय नहीं है। और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। हमारा नंबर 5वां है, 5th इन द वर्ल्ड। और पावर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातों की सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी। इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं हुआ तो हम गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज पावर की हमारी कमी है, और इसलिए जियो थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, ग्रीन पावर है, काफ़ी रिसर्च आप लोगों ने भी किया है। पर आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन या ऐसा फ्यूल होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में केमिकल, फर्टिलाइज़र, स्टील सब इंडस्ट्री के काम में आएगा। हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बसेस आ गई है, मेरे पास कार है हाइड्रोजन की दिल्ली में, उसका नाम है मिराई। जापान में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। इतनी सुंदर कार है कि मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल है। और मैं हाइड्रोजन भर के फरीदाबाद से इंडियन ऑयल लेबोरेटरी से लाता हूँ, बहुत सुंदर है। और अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की भी कार है टोयोटो की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मेरे आग्रह पर बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। और ये बायो इथेनॉल में ऐसा है कि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का माइलेज थोड़ा कम मिलता है। तो एक बार मैंने देखा ऐसा, तो रशिया में कुछ रिसर्च हुआ था, तो मैंने उन साइंटिस्ट को बुलाया और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को बुलाया, मिनिस्टर को भी बुलाया। मैंने कहा ये माइलेज सेम होता है पेट्रोल लेवल। तो मुझे राम कुमार करके, जिन्होंने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च किया है, तो उन्होंने कहा कि सर ये अच्छी आइडिया है पर मुझे असंभव लगती है। तो मैंने कहा ये इनका सुन लो, प्रयोग करो, गाजर की पुंगी है, बच सकती तो बजाओ, नहीं तो खा लो और छोड़ दो। आपको ताज्जुब होगा, 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि ये सक्सेसफुल है। तो अभी इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल के बराबर है। इथेनॉल का 60 रुपये लीटर और पेट्रोल 110 रुपये लीटर। तो वो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है। तो अब हमारा देश, हम लोग मोलाइसिस से, BIV मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से, ब्रोकन राइस से, फूड ग्रेन से, बाम्बू से, एग्रो वेस्ट से हम इथेनॉल बना सकते हैं। अभी हमने आसाम में एक बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू हो गया। और ये जो परली है, दिल्ली वालों को बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में ये जो राइस स्ट्रॉ है, इसको परली बोलते हैं, जो जलाते हैं, जिसके कारण काफ़ी पोल्यूशन होता है। वो बहुत पीछे पड़ा था। तो अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक फैक्ट्री शुरू की है। 150 टन पर डे बायो बिटुमिन बनता है परली से, और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल बनता है। अब परली से 5 टन और परली से 1 टन बायो CNG बनता है। उसके भी 15-20 प्रोजेक्ट आ गए। तो मैं जो आपको एजेंडा देकर जा रहा हूँ, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बाय यूजिंग बायोमास हम बायो CNG, बायो ANG और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाएं। और हमारा किसान में हर जगह पर कुआं है, किसान के घर पे तो पानी है, वहाँ गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज डाल देगा तो उससे उसको पावर, सोलर पावर मिलेगी।
और वहीं से इलेक्ट्रोलाइज़र लगाकर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा तो उसका ही गैस स्टेशन तैयार हो जाएगा। और हम लोग बड़े प्रमाण पर अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से आता है और ब्लैक हाइड्रोजन कोल से आता है। और कोल गैसिफिकेशन में भी काफ़ी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ देश में कोल से यूरिया बनता है। अभी एक जगह हम उड़ीसा में शुरू कर रहे हैं, पर हम देश में 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट की शॉर्टेज है, वो हम इंपोर्ट करते हैं जो कोल से बना सकते हैं। कोल से डीएमई बनता है जो हम एलपीजी में ऐड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको यही कहूँगा कि वी नीड रिसर्च बट नीड बेस्ड रिसर्च। हमारे जो इंपोर्ट क्या है उसको ढूंढ लो और इंपोर्ट के स्वदेशी अल्टरनेटिव आप क्या तैयार कर सकते हैं वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो। और मुझे लगता है कि उसमें हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इंपोर्ट भी कम होगा और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे देश के टोटल ग्रोथ में हमारी 22 to 24% जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है और 12% एग्रीकल्चर से आती है। तो अभी 65% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे 124 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और वहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा का भी अभाव है और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो फॉरेस्ट बेस जो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, एग्रीकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो सकती है, उसमें आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो गोबर से हमने हमारे यहाँ पेंट बनाया। ये जो जयपुर में हमारा एक कुमारप्पा इंस्टीट्यूट है खादी ग्राम उद्योग का, उन्होंने बहुत सुंदर पेंट बनाया और उसमें 9 फीचर्स ऐसे जो ये पेंट में नहीं है। मैंने खुद अपने कॉन्फ्रेंस रूम में लगाया और इतना हाफ ऑफ द प्राइस। अब ये पेंट अगर बनना शुरू हो गया और गाय के गोबर को अगर 5 रुपये किलो का भाव मिल जाएगा तो गाय को कोई बेचेगा ही नहीं। अभी इसमें भी इतना रिसर्च हुआ, आपसे रिलेटेड नहीं है, कि 1952 में हमारे देश से गिर नाम की गाय ब्राज़ील गई और अभी उनके पास गिर इतना अच्छा डेवलप हुई है कि 60 लीटर देने वाली गाय है गिर। और उसका जो बूल आया, टोरेंडो उसका नाम था, तो 60 लीटर जो गाय दूध देती थी उसके बूल का सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को अगर दिया तो उससे 20 लीटर की गोरी। ये प्रयोग शुरू हो गया, मैंने नागपुर में भी लेबॉर्ट्री डाली है। अभी चितड़े करके जो है सांगली में, उनने भैंसों के लिए और गाय के लिए बड़ी अभी उद्घाटन के लिए मुझे वो बुलाने के लिए आए हैं। अब उसमें और नई रिसर्च हुआ कि जैसे बेटी बचाओ अभियान करते वहाँ अब गाय के लिए करने की ज़रूरत नहीं, 100% 99% गोरी होगी। और 2 लीटर के गाय से, जैसे आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी बनती है और वो जो गोरी है वो 20 लीटर 25 लीटर की दूध देंगी, देशी होगी। और धीरे धीरे अगर ये होगा तो 3 वेत में हमारी हुस्टन और जर्सी की गाय भी देशी नस्ल में बदल जाएगी। तो फिर से देशी गाय और देशी गाय के दूध की अलग विशेषता है। तो अब ये रिसर्च इतना हो रहा है कि ये सब, इसमें हम लोग काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में कर सकते हैं। बाम्बू, इतना अच्छा बाम्बू में काम हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं भी खूब दिनों से बाम्बू में काम करता हूँ, इतना अच्छा फर्नीचर बना है, इतने प्रोडक्ट अच्छे हुए हैं। बाम्बू से बायो इथेनॉल बना है, बाम्बू से आचार बना है, बाम्बू के कपड़े अच्छे हुए हैं। मैं इंदौर में गया तो मॉडल वो बाम्बू के कपड़े पहनकर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। इतना बाम्बू से अच्छा फाइबर है। अब बाम्बू में अभी हमारे करपे करके एक है सिंधुदुर्ग जिले में, टाटा ने उनको काफ़ी मदद की है। उनको अभी हमारे मालदीव्स में उनको बहुत बड़े ऑर्डर मिले। अभी वो दोहा का एयरपोर्ट बाम्बू का वो बना रहे हैं। आप दिल्ली आएंगे तो हमारे यहाँ ताज मानसिंह होटल है, उसमें एक मचान 5 स्टार और पचान करके रेस्टोरेंट है, वो पूरा बाम्बू से बना है। तो बाम्बू में ऐसी स्थिति है कि मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो चाइना से अगरबत्ती की गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी। मैं खूब पीछे पड़ा
और मैंने वो इंपोर्ट बंद किया तो चाइना में जिस गांव में अगरबत्ती की गाड़ियाँ बनती थी वहाँ मेरा पुतला फूका हुआ के लोगों ने। मैंने उनका पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसाम में नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू बनता है, तो मैं एक मल्टी मॉडल हब बना रहा हूँ जोगीदोपा में, आसाम में, जहाँ ब्रह्मपुत्रा भी है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है और नेशनल हाईवे है। और वो नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू अपने देश में आए और वहाँ केवल स्टिक बन जाए, बाद में यहाँ अगरबत्ती बने। तो अब धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ है। तो धीरे धीरे हर चीज़ ऐसी जो रूरल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, हम ऐसे कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जिससे वैल्यूडेशन हो सकता है, और वहाँ निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी जो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी वो बहुत उपयोग होगा, वहाँ नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मैं तो आग्रह करूँगा, वैसे हमारे रोड सेक्टर में काफ़ी IITs काम करती है, बॉम्बे IIT को भी हम हर जगह बहुत। आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ कि IIT वाला क्या कर सकता है। मैं शिपिंग मंत्री था, तो कलकत्ता में एक हल्दिया पोर्ट है, तो वहाँ एक हमारी चैनल थी, तो मेरे साथ एक IIT का ही लड़का अरुण नरेंद्रनाथ करके काफ़ी देर का अभी वर्ल्ड बैंक में गया, तो उसने कहा कि यहाँ ये जो पुराना चैनल है इसको हम अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा 250 करोड़ साल का ड्रेजिंग का पैसा बचेगा। तो मैंने पोर्ट चेयरमैन को कहा, उसने कहा सर ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा कोई कंसल्टेंट को पूछो। बोले नहीं ये वायबल नहीं है। अब मुझे क्या मालूम कि 250 करोड़ के काम में काफ़ी लोगों का लाभ मिलता है ना। तो उसने कहने के बाद फिर मैंने आखिर गुस्से में आकर एक कमेटी अपॉइंट की और चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर को काम दिया और उनको कहा कि ये चैनल हो सकती है क्या। उनने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया और फिर वो चैनल हमने चालू की। आपको ताज्जुब होगा, तब से 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे और वो चैनल अब चालू हो गई कल हल्दिया पोर्ट में, बिकॉज ऑफ IIT। मैं खुश हो गया और मैंने चेन्नई IIT को कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, और 50 करोड़ रुपए मैंने दिए कि वे आप मेरे डिपार्टमेंट से कि आप शिपिंग से रिलेटेड आप सब रिसर्च करो। तो ये निश्चित रूप से फ़ायदा है। और इसलिए एक बात और एक ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये साइलो में काम करती है, और रिसर्च को जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं, वैसे रिसर्च पेपर किसी को ना समझे ऐसे सील करके रखते हैं। रॉयल्टी ले रहा है तो लो, बताओ तो लोगों को। देते नहीं, बहुत से रिजल्ट सरकार में भी डिफेंस के अनेक ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री ने कहा बाहर निकालो, ये दो लोगों को। एग्रीकल्चर के रिसर्च है, अनेक रिसर्च है। तो रिसर्च जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें लोकाभिमुखता होनी चाहिए। इसके लिए वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर होगा, जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ, मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरे पास है। अब मैं 260 केबल कार बना रहा हूँ, रोप वे फेनोकुलर रेलवे बना रहा हूँ 260। तो लद्दाख और लेह में, श्रीनगर और लद्दाख लेह को जोड़ने वाली कारगिल में मैं टनल बना रहा हूँ, और उसमें आपको खुशी होगी कि ये टनल 12,000 करोड़ की थी। 4 बार टेंडर हुई, पर हमारे लोगों ने साल भर हमने अध्ययन किया, उसकी काफ़ी टेक्नोलॉजी और इसमें रिसर्च किया, और अब टेंडर निकला तो हमारे 5,000 करोड़ बच गए, हमने कॉस्ट बचाई। और अभी वो टनल वहाँ जो है लद्दाख लेह में पहाड़ी पर लोग रहते हैं। तो मैं एक IIT का, ये शायद आपके मुंबई IIT के ही होंगे, वो पता नहीं मुझे, गोवा में है, उन्होंने एक छोटा सा फेनिकुलर रेलवे बनाई है। तो मैंने उनको बुलाकर वहाँ के गवर्नर के पास भेजा, और अब वो मैंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट तुम बनाओ, विदेशी कंपनी के बजाय मैं आपको काम देता हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ। अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं 1200 करोड़ का आपको काम दूंगा, 30-40 प्रोजेक्ट का। तो ऊपर के ऊपर जाने के लिए उसने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है कि उसमें भेड़ बकरी भी जा सकती है, 2 व्हीलर भी जा सकता है, और नीचे लोग भी बैठ सकते हैं, और ऊपर में ऐसी जाएगी वो। तो वहाँ के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। नहीं तो इतना डीजल से इतना टाइम भी लगता है और तकलीफ भी होती है। तो अब बहुत जगह मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अभी बंगलोर में मैं गया था, इतना बंगलोर में ट्रैफिक जाम है, इतना पोल्यूशन है। तो मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि मैंने हमारे यहाँ एक प्रेजेंटेशन डॉफल मेयर करके कंपनी ऑस्ट्रिया की, वो हवा में चलने वाली डबल डेकर बस थी, मुंबई में ऐसी चाहिए।
और वो बनाने के लिए हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो वो डबल डेकर बस है, 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में जाएंगे। जैसे ये पवे के पहाड़ से ऊपर निकल कर नरीमन पॉइंट तक ऊपर के ऊपर जाएंगे, तो ये एकदम आपको आसानी होगी, समय बचेगा। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसमें आपकी मदद चाहिए। मैं कुछ दिन पहले मुंबई आया था। मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की। अब आपको तो इलेक्ट्रिक में हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं, और इलेक्ट्रिक की बस, अभी डीजल की बस जो बेस की चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर है। और इलेक्ट्रिक बस जो 5,500 बसेस का हमने भी टेंडर बुलाया था, उसमें नॉन एसी बस का 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी बस का 41 रुपीज़ पर किलोमीटर। अच्छा, डीजल के बस में डीजल की चोरी होती है, इलेक्ट्रिक बस में चोरी करने का कोई चांस नहीं। अच्छा, टिकट के भी सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि एक तो मोबाइल फ़ोन पे या कार्ड पर, तो वो टिकट कंडक्टर कभी टिकट काटता ही नहीं था, वो जेब में पैसा रख देता था। तो सब लॉसेस में है। तो मुझे लगता है कि अभी देश में अगर ठीक से हुआ तो 10 लाख बसेस लगेगी इलेक्ट्रिक की, डबल डेकर, एयर कंडीशन, लग्जरी बसेस। अब धीरे धीरे उसके चार्जिंग के, मैं जब पहले ये बात करता, लोग बोलते थे रास्ते में गाड़ी बंद हो गई इलेक्ट्रिक की तो कैसे करेंगे, और दुनिया भर के सवाल पूछते थे। अब कोई नहीं पूछता, अब वो सक्सेस हो गया। अभी हमारे देश में टाटा के इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अब लोग मेरे पास आते, तुम्हारी चिट्ठी दो और आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी मिला के दो। अब वो पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया। अभी LNG का ट्रक मैंने लॉन्च किया पूना में, उसमें 50% डीजल की तुलना में बचत है, और एक इसमें वो 1400 किलोमीटर चलता है। ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनका पूना में मैंने ट्रक लॉन्च किया। अभी मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। अब सब गाड़ियाँ बदल रही, जो नहीं बदले वो नुकसान ही खा रहे, उनका सेल कम हो गया। एक बहुत बड़े उद्योगपति है ऑटोमोबाइल के, उनको मैं बहुत कहता था कि तुम इलेक्ट्रिक में जाओ, तो उन्होंने मुझे अभी बताया, आप बोलते थे बोले इलेक्ट्रिक में जाओ, पर हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठा कि ये हो नहीं पाएगा, पर आपने कर लिया। अब हमको लगता है बोले कि हम बस मिस कर दिए हमने। अब इलेक्ट्रिक में 400 स्टार्टअप है, और वो ऐसी स्कूटर बना रहे हो, दिमाग तो लगाते हैं, होशियार है आप IIT वाले। अब वो 125 किलोमीटर की बजाज और TVS की स्कूटर है, ये 60 किलोमीटर की बनाए, तो बैटरी की कॉस्ट कम होगी तो इनकी सस्ती है। तो उन्होंने स्टडी किया है कि एक स्कूटर वाला दिन में 24 से 26 किलोमीटर ही चलता है, तो फिर 125-30 किलोमीटर की ज़रूरत ही नहीं, तो कॉस्ट कम हो गई। तो 60,000 और 70,000 में 2 व्हीलर मिल रहा है। तो छोटे छोटे लोग, सफाई कामगार, पियून, सिक्योरिटी गार्ड, सब स्कूटर ले रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी है। अभी कार्ड बन गया, ई-रिक्शा हुआ। ये ई-रिक्शा आज देश में, मुझे बहुत बार पूछते लोग कि आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो मैं एक ही बताता हूँ कि साइकिल रिक्शा को बंद किया। 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करता था, ये टेक्नोलॉजी है। ये मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा आया, और मैं नया मंत्री बना था, मैंने खूब उसको प्रमोट किया। तो ये जिनके धंधे इससे ख़राब हुए वो कोर्ट में गए, तो मैंने अलाउ किया था कि वो इसका चक्का लो, उसका एक्सल लो। तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट के लोग बोले इसका ये, उस कंपनी का ये। बोला देखो, महात्मा गांधी जी ने एक बात बताई थी कि जब तुमको कोई भी निर्णय करना पड़ेगा, अगर वो निर्णय तुम्हारे स्वार्थ के लिए करते हो तो गलत है, पर गरीब के हित के लिए करते हो तो उस कानून को तोड़ना है तो तोड़ो। मैंने बोला ये तोड़ो, भले वो बजाज का एक्सेल वापरे या हीरो का चक्का लगाए, ये स्टैंडर्ड है, इसको अलाउ कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट तक केस चली, हम जीत गए। और आज 1 करोड़ लोग जो थे, आदमी को ढोने का काम करता था, जो पीठ पर अपना 1 क्विंटल का बोझा लेके चलता था, वो ई-कार्ट आ गए, ई-रिक्शा आ गए। अब अमेज़ॉन ने पूरे ई-रिक्शा, सब जगह ई-रिक्शा आ गए, ई-कार्ट आ गए, और देश में 1 करोड़ लोग एक प्रकार से मानवीय गुलामगिरी से मुक्त हुए, उनका शोषण खत्म हुआ, और आज मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा चल रहा है। दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप काम कर रहे हैं। यू कैन मेक मिरेकल्स। और इसलिए मेरा विश्वास है कि समाज उपयोगी, गरीब उपयोगी, गांव गरीब, मजदूर, किसान, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जो दरिद्र नारायण है, उनके लिए ज़्यादा रिसर्च को प्रायोरिटी दो।
बाकी भी रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, पर इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और गरीब लोगों के इसमें जो रिसर्च होगा उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रोड सेक्टर में टनल्स, ब्रिजेस, रोड सब आईआईटी की मदद लेता हूँ। कुछ भी ब्रिज गिरता है तो आईआईटी के प्रोफेसर को भेजता हूँ, बिकॉज योर रेपुटेशन इज़ वेरी गुड। जो साहब ने बताया, एक बात आखिरी में बताता हूँ, रेपुटेशन ये बहुत बड़ी ताकत है। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन इज़ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पर विश्वसनीयता ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ा कैपिटल है। मुझे विश्वास है कि आप लोग जब यहाँ से निकलोगे तो और एक बात है जो मैं कहता था, मैं ऐसे फैमिली में बिलोंग करता था कि मेरी बहनें एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मेरे जीजा जी, तो मेरी दोनों बहनें मुझे कहती थी तुम नौकरी करो। मैं पढ़ते हुए कहता था, माँ कहती थी नौकरी करो, तो मैं कहता था नौकरी नहीं करूँगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं जमा लूँगा। पर वो सब घर में ऐसे ही एटमॉस्फेयर था कि नौकरी। तो मैंने एक दिन कहा कि मैं नौकरी करने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूँगा। मैं इंटेलिजेंट इतना नहीं था आप जितने हैं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। देयर इज़ ए मिस इम्प्रेशन अबाउट मी कि मैं इंजीनियर हूँ। बहुत लोगों को ये सही नहीं लगता, पर मैं इंजीनियर नहीं हूँ। पर मैं प्रैक्टिकली काम करता था तो एंटरप्रेन्योर था। अब मैं 15,000 लोगों को रोज़गार दे चुका हूँ और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं अभी रोड ब्रिजेस में नहीं काम करता, गांव में काम करता हूँ। एकल विद्यालय चलाता हूँ ट्राइबल सेक्टर में। हमारे यहाँ गढ़चिरौली करके डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सलाइट का कैपिटल जैसा है, वहाँ 1200 विद्यालय चलाता हूँ। बाकी सोशल वर्क करता हूँ। और ये मेरा पूरा बालों से मैंने एमिनो एसिड बनाया, वो मेरा नहीं, मैंने देखा कहीं और चालू किया। अब पॉपुलर है, एमिनो एसिड बेस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाता हूँ, प्लांट बूस्टर है वो बालों से। तो मुझे लगा कि नागपुर में तो बाल इतने ब्यूटी पार्लर है, हेयर कटिंग सॉल मिल जाएंगे। जब मैंने सब मशीन सेट की और गया तो 40 किलो ही मिले। तब मुझे ध्यान में आया पहली बार कि बालों को वजन ही नहीं होता। अब मैं 1 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और एमिनो एसिड बनाता हूँ और एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाता हूँ, इथेनॉल बनाता हूँ, अभी बायो CNG बना रहा हूँ और एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मेरा आपको सुझाव है कि निश्चित रूप से इस देश का पुनर्निर्माण हम आपके नॉलेज एज ए पावर, टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है। टेक्नोलॉजी नीड बेस होनी चाहिए, सोसाइटी की नीड क्या है वो समझना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बेस होनी चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है। और एक है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी। चारों बातें एक होंगी तो होगा, नहीं तो आपने समझो कोई चीज़ है बनाई और मार्केट से 2 गुना ज़्यादा प्राइस है तो क्या फ़ायदा उस रिसर्च का। विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी वो मीनिंगफुल नहीं है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजीनियस, इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ, रिसर्च के साथ आप लोग इस देश को, देश के भविष्य को बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत, सुपर इकोनॉमिक पावर, उसमें आप सब लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी और इसके साथ एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग करके वैल्यू बेस्ड जो संस्कार है उसके आधार पर भविष्य के नागरिक के रूप में आप अच्छा काम करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your enlightening words. So, audience has some questions for you. To make the process more efficient, we have collated the same. I would be reading them out to you one by one, and you can answer the same. Hello. So the first question is,
The government is incentivizing the adoption of EVs by consumers and also helping domestic manufacturers. But the maximum cost contribution in EV is due to battery. And for sourcing battery as raw material, India is import dependent. So what are the plans regarding the same? देखिए, ये एक आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार मैं जेट एयरवेज था तब, तो बिज़नेस क्लास में मैं प्रवास कर रहा था, तो उनका एक मासिक मुझे मिला। तो पढ़ते हुए मुझे इसरो के ऊपर एक लेख था, तो मुझे ध्यान में आया कि जो सैटेलाइट जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हो रहा है। तो फिर मैंने इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में, और मैंने उनको पूछा, आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ, हम बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते हैं? तो बोला हमारा मैंडेट नहीं है इसका। मतलब मैंडेट का मतलब क्या होता है? फिर मैंने ARI की डायरेक्टर थी पूना में, जो ARI है उर्ध्व रेशे, उनकी और उनकी बात करवा दी। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर रिसर्च किया। अभी हमारे देश में लिथियम आयन बेस्ड केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है। और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये चैलेंज है। ये लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जब नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। मैं मुंबई में था, जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, तो मैंने हमारे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोनावाला खंडाला के बीच में काम करते थे, तो उसको मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया कि ऐसा देना है एक मोबाइल फ़ोन हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वहाँ काम करते हैं, वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा ये GAD परमिट नहीं करती, ये नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने खरीद के एक हमारे एग्जीक्यूटिव को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि जब आप ये जो लिथियम आयन बैटरी, मेरे उम्मीद से, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री, आज से 2 साल के अंदर पेट्रोल व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम होगी, और पेट्रोल व्हीकल का खर्चा जो होगा उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा 10 गुना कम होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो ये होने वाला ही है। तो ये क्या होता है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की कीमत कम हो गई, एक समय लैपटॉप की कीमत कितनी ज़्यादा थी, धीरे धीरे हम उस समय, मुझे याद है कि दुबई में जाते थे, ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। अब कोई लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इतने प्रोडक्शन बढ़ा। मैं आपको एक मजाक, अभी ये राहुल बजाज जी के नाम से मेरे अच्छे मित्र थे, और एक बार उनको मैंने एक कहानी बताई। बोले मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे स्कूटर लेनी थी। तो ये बात शायद 78 की होगी, 77 की। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था। तो मैं स्कूटर, एक को नंबर लग गया, तो मैंने उसको कहा कि भाई नंबर लग गया तो उसको ऑन देना पड़ता बजाज की स्कूटर के लिए। तो उस समय हमारे यहाँ किसी की शादी होती थी, तो ससरा बजाज स्कूटर अगर देता था तो लोग बोलते थे बहुत बड़ी पहुँच है इनकी, चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तुम मामूली समझ रहे हो क्या? वो इतने बड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते थे। तो मैंने बोला मुझे भी एक 2,500 रुपये ऑन दे के खरीदा गया। तो डीलर के पास गया, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ये रंग नहीं चाहिए, दूसरा रंग चाहिए। उसने तुरंत कहा लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, इस दूसरा रंग नहीं है। तो मैं बाहर आया, तो मैंने भगवान को प्रार्थना की, साला एक दिन ऐसा आए कि ये ट्रक के ऊपर अपनी स्कूटर लेके गांव भर घूमता रहेगी मेरी लो करके। तो मैंने राहुल बजाज को कहा कि एक दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी ऐसी नौबत आएगी कि तुम ट्रक पे स्कूटर लेके गांव में घूमोगे कि हमारी स्कूटर लो। मैं मजाक में उनको बताया, पर यह सच हुआ। अब बजाज के साथ इतने स्कूटर आई, उनका नुकसान नहीं हुआ। 50% बजाज का प्रोडक्शन, हीरो का प्रोडक्शन और TVS का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। वी आर नंबर 1
हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट बड़ा है। और मैंने तय किया कि इसको 15 लाख करोड़ का हम 5 साल के अंदर करेंगे। और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, वो फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो, पर जो जितने ब्रांड्स हैं मैं आपको बताता हूँ, वो सब मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में, रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हमारे देश में है, लेबर कॉस्ट सबसे हमारी है, लॉजिस्टिक डेवलप हो गया है। तो अब हम लोग 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये कीमतें बिल्कुल कम हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। एक के पीछे एक कंपटीशन शुरू हो गई, जिन कंपनियों ने मेरा सुना नहीं उनका 5% सेल कम हो गया। और जो कंपनियाँ, मैं दोनों मालिक थे, बहुत बड़े लोग हैं, उनको मैंने कहा कि आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, आप कॉस्ट सेंट्रिक है, आप क्वालिटी सेंट्रिक बनो। आज गरीब आदमी भी सस्ता करके ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं लेता, वो कलर टीवी लेता है। और जैसे उन्होंने अभी क्वालिटी सेंट्रिक बने तो उनकी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई। अब फॉरेन ब्रांड के तुलना में इंडियन ऑटोमोबाइल के ब्रांड अच्छे चलने लगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया। आप चिंता मत करिए, 2 साल के अंदर ये सब कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हम लोग इसमें काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। Sir, due to paucity of time, we would have to stop the question answer session. अगर 1-2 प्रश्न है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम। Okay, sir. So the next question is, many cities in Europe are opting for carless development. Cycling is a major form of transport in cities like Amsterdam. Do you see such scope in India in near future? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की समस्या है कि हमारे लोग 2 बातों में बहुत ही डायनेमिक है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ इतनी बढ़ रही है कि कहीं रखने के लिए, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। अभी मैंने बेस्ट को सुझाव दिया है कि एयर कंडीशन बसेस करो, डबल डेकर या सिंगल भी, और उसमें टिकट रेट 25% कम कर दो इलेक्ट्रिक पर। और अभी यहाँ से कोई नरीमन पड़ जाए तो बस में सोकर लैपटॉप वगैरह सब लेकर उसको सब फैसिलिटी होगी, तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे। वी नीड टू डिस्करेज द पीपल फॉर यूजिंग देयर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी है, साइकिल को है। मुझे एक ने पूछा, मुंबई में साइकिल को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते? मतलब साइकिल ट्रैक बनाएगा, जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी 1.5 लाख बसेस को 10 लाख बसेस में जाएंगे। जब कंफर्ट्स होगा, एयर AC बसेस होगी, टिकट रेट और कम हो जाएंगे, तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, वो मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया। नागपुर में मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूं। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब रेलवे के अप्रूवल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी। सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही रही है कुछ। अब ब्रॉडगेज बढ़ा, अभी मुंबई से जैसे ये लोकल अभी अपनी जो है ये लोनावला खंडाला जाती है, तो धीरे धीरे पुणे से मुंबई और पुणे से सोलापुर, फिर कोल्हापुर, अहमदनगर, ऐसे देश में अगर ये दिल्ली से चंडीगढ़, मैं अभी उत्तराखंड के चुनाव में गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं उसके कैंपेन के लिए गया, तो उसने मुझे कहा कि देहरादून इतना इम्पोर्टेंट है नितिन जी, आप कितने टूरिस्ट आते हैं, रोज़ 12 फ्लाइट दिल्ली से आती है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने भाषण में कहा तू चिंता मत कर, इस दिसंबर में एक भी फ्लाइट नहीं आएगी दिसंबर के बाद, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूँ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अभी मैं नरीमन पॉइंट से करने का मेरा इच्छा है कि वहाँ से शुरू होकर 12 घंटे में दिल्ली पहुँचे, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और लखनऊ से कानपुर आधा घंटे में। ये सब दिसंबर तक मेरे रेड हो जाएंगे। तो फिर वे रेलवे में कैसे बैठेंगे लोग? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ने का प्रॉब्लम है। तो मैं अभी सॉल्यूशन चाहता हूँ हाइपर लूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपर लूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज के ज़मीन पोजीशन में है, तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी, तो आप ज़रूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने में, अगले महीने ही तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। Thank you, sir, for addressing the questions. I would now invite Vedant Mate for the vote of thanks. Thank you, Tanvi. This brings us to the conclusion of the event. In the interest of the audience, I'll briefly summarize the Chief Guest address. Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari ji, emphasized the importance of conversion of knowledge to wealth. Sir discussed the various projects undertaken under his leadership and nuances involved in dealing with complexities in such projects. Sir highlighted the importance of knowledge, technology, entrepreneurship, and inherent ability to use this for development of country and especially the underprivileged sections of the society. Sir also pointed how indecisiveness can deter development. Sir advised leaders of tomorrow to imbibe positivity, team spirit, ethics, and let go of ego and malice. Finally, Sir gave the message of creating confluence of knowledge with good character. I extend our gratitude to the Chief Guest on behalf of entire IIT Bombay for giving us your valuable time and enlightening us with your thoughts. Thank you very much, sir. I would also like to thank Professor Subhashish Chaudhary, Director IIT Bombay, and all the institute dignitaries. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपको। मैं भी मुंबई में 18 साल रहा हूँ, आप मुंबई में पढ़े हो IIT में। मैंने ये BPT में
एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया है कि मुंबई के किसी भी दिशा से नए एयरपोर्ट पर 17 मिनट के अंदर आप पहुंचेंगे बाय वाटर टैक्सी। और हमारे देश में शिपिंग में आपके यहाँ इसका कुछ रिसर्च होता है कि मालूम नहीं, पर ये मुंबई की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कम से कम 5-6 हज़ार वाटर टैक्सी अगर वो जाएगी तो ऑलरेडी मैंने अलीबाग का वो शुरू कर दिया है। तो ये वाटर टैक्सी शुरू हो जाएगी तो एयरपोर्ट पर बेलापुर, अलीबाग, नया एयरपोर्ट जैसे आप इटली में अपना कौन सा सिटी, वेनिस में जैसे पानी में होटल से उतरकर आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वैसे मुंबई में डोंबिवली से लेकर वसई कहीं से भी 17 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, नया एयरपोर्ट जो बन रहा है। तो वो प्रोजेक्ट सर आप रिसर्च के लिए ज़रूर लो। हमारी एयर बोट्स और ये कुछ उसमें होगा तो ये बहुत बड़ा मुंबई के लिए होगा। मुंबई का ट्रैफिक जाम कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। और ये तैयार है प्रोजेक्ट बीपीटी में, ड्रेजिंग वगैरह करके पूरा फाइनल स्टेज पर है। आप केवल वो जो बोट्स है, एयर बोट्स, वो हमारे देश में इसका रिसर्च लगभग नहीं के बराबर हुआ है। अगर वो वाटर टैक्सी आपने अच्छी डेवलप कर दी तो बहुत अच्छा होगा। ये एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू। Thank you for your suggestions, sir. I thank Professor S. N. Rao, HOD SGM SOM, Professor Sathak Gaurav, Faculty Coordinator of Team Avenues for their support. Last but not the least, I thank each and every one of you in the audience for attending the session. Thank you. I request the audience to remain seated until the chief guest leaves the auditorium. So now we will go to the